Faisal sir, I always used to pay my gratitude, sir. You have been very nice with me, sir. Thank you. Thank you, sir. No need, sir. It is my pleasure always to be associated with you, connected to you. Thank you, sir. Uh, And my words to you, I will be at your expectations, sir. inshallah, inshallah. Almost Okay, 35 now it is years. 3:33. Okay, so let's start. I think. So let me have the formal beginning. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good afternoon to all. Once again, all are welcome to this last day of our 23rd online Malawi Mission teacher training program on NEP 2020 orientation and sensitization program. And we have been here since last 8 days. This is the 9th day, and we are going to conclude today. So it gives me great pleasure to extend a warm welcome to Professor Yasam Khan sir, who has joined us today for the 23rd MMTTV session on NEP, where he will be leading an important discussion on research project management. Professor Yasam Khan sir brings with him a wealth of expertise in the field of psychology, with over 3 decades of research experience and nearly 2 decades of teaching at both undergraduate and postgraduate levels. His remarkable academic journey includes a master's degree in both statistics and psychology from Aligarh Muslim University and a PhD in psychology from University of Lucknow. His earlier contribution at the Research Design and Standards Organization of the Indian Railways are a great testament to his excellence in applied research, particularly in the critical areas of human error and safety in train operations. Over his distinguished career, Professor Khan has made significant contributions to the field of applied psychology, having been involved in 39 research projects for the Indian Railways, published 2 books, and authored and co-authored 59 research papers in prestigious national and international journals. His dedication to the advancement of research is further exemplified by his guidance to 11 PhD scholars and 85 master's dissertations. Professor Khan's extensive involvement as a program counselor, organizer, keynote speaker, workshop leader, and the resource person for many of the refresher courses and orientation programs, particularly in the areas of research methodology, data analytics, online learning, underscored his leadership in both academia and industry. His participation in over 160 research methodology workshops, coupled with his roles in University Innovation Council and editorial board, speaks to his tireless commitment to shaping the future of research and education in India. We are truly honored to have someone of this caliber with us today, and I am confident that his insight into research project management will be invaluable to all of us. And please join me in giving a warm welcome to Professor Yasam Khan sir. And I welcome all to this first session of this day. Thank you all. Assalamu alaikum. Now I request Professor Yasam Khan sir, just please take over the mic and you please start. Yes, sir. As sir already informed, he has now already attended 3-4 programs today. So this will be, I hope this will be the last session of his today. Sir, the mic is up to you Yes, now. sir. Okay, fine. सर मेरे यहाँ थोड़ा सा एक्चुअली इशू है क्योंकि कल रात से लाइट नहीं है, तो आई विल ट्राई टू इंश्योर द बैकअप. पार्टिसिपेंट्स आई विल आल्सो ट्राई टू मैनेज इट. अगर ऐसा होता है तो 2-3 मिनट के लिए आई विल स्विच ओवर टू द हॉट स्पॉट. सो प्लीज बियर विद मी. जैसे अभी कनेक्शन शायद चला गया था सर. आई विल ट्राई टू फिक्स इट. फाइन सर. सो आई होप. Okay, fine. Fine. It's fine, sir. Let me just give me 2 minutes, sir.
So, बहुत शुक्रिया sir. Thank you so much for the introduction, sir. I will try to be at your expectations. Dear friends, Dr. Faisal KP Saab, the director of the AMU Center, Mallapuram, he is one of the very, very amazing human being as teacher as well. Dr. Razi और भी बहुत सारे teachers हैं. I respect you all. I welcome you all. And the topic which has been given to me, it is about research project management. Really a wonderful application for the professionals, for the teachers, or you can say the academicians as well. So let me start my talk, sir. I will try to be at your expectations. N number of applications, generative AI applications, I am going to share with you how to play with the research. So, research project management. You all are familiar, friends, when you are moving on the journey to examine your or to study your research problem. There are number of activities or stages, and they are to be managed scientifically, systematically, and professionally. So how to manage all the stages and all the steps scientifically, so you can work on a research project. And it includes number of activities: planning, organizing, gathering, collecting, analyzing, and reporting. And number of activities are there. And most of the activities we are going to discuss, we are going to explore using hands-on practice as well. And if you look into this slide, let me little explore it, zoom it. Perhaps this will be visible to you. Now see, this is the first slide. This slide has been created using the mind map. This is about managing a research project mind map. If you look into the planning, my point before you as a researcher, as a teacher, or as a scholar, whenever you are planning to discuss a topic, it is nice or appreciated if you create the mind map. This will give you the wonderful impression to the audience how smart you are, how you are managing the things, so the information can be transferred to the audience or students. If you look into this slide, the topic is managing research project. The first stage is planning, is conceptualization, define research questions, objectives, and hypotheses. Timeline, set milestones and deadlines. Hypothetical example for the research problem. आपके सामने रखा है. Resources, you are having n number of resources. Human resources, financial resources, technological resources, and so on. And hypothetical example for each stage. Data management, how you are going to collect the data. Storage, analysis, and example. Project management, task allocation, monitoring progress, risk management, hypothetical example, writing a report. The first slide that I shared with you, the wonderful application that I am going to share with you, the first AI application. Can you imagine this, how much time it took me to create this mind map? In series of workshop, the audience used to comment, sir, 15 days, 20 days, or 30 days, and so on. You will surprise that everything, the text is perfect on the basis of research. Schema is very clear, heads, subheads, and so on. So if you have a task
to create this mind map, the first knowledge I'm going to share with you, you will surprise that this type of mind map you can create within less than 2 minutes. The first knowledge that I shared with you, go to your internet and chat GPT, the first application. देखिए, whatever the stage I am going to discuss with you about the research, for every stage I have an AI. You need to accept the technology, वरना चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी. हमने कोविड में देखा है, हमने रिसर्च में भी देखा है. The task which is repetitive in nature, manual in nature, why don't we use the technology? So go to the chat GPT. You all are familiar about this chat GPT. Now see, the first prompt what I am trying to give. I have written the prompt to minimize the time. Now see, this is the prompt I will discuss with you in the this slide also. Now see, mind map is the first keyword. You can have the screenshot. Suggest mind map on the topic social loofing. सोशल साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. whenever we are in a group or whenever we are working in a team, we used to put less effort. कि दूसरे लोग कर रहे हैं, मैं क्यों करूं. अब देखिए, इसी टॉपिक का मैं कॉन्सेप्ट जानना चाहता हूं, थ्योरी, हाउ टू मेजर, यूजेस एंड एप्लीकेशन. एक प्रॉम्प्ट के अंदर ही देखिए कितनी सारी चीजें आपके पास आती हैं. जस्ट क्लिक. अब देखिए, मेरे लिए माइंड मैप तैयार हो रहा है. उसको डिफाइन किया, उसकी फीचर्स आई, उसकी थ्योरी आई, हाउ टू मेजर, यूजेस एंड एप्लीकेशन. एक बहुत छोटा सा टॉपिक मैंने आपके लिए है, ये तैयार हो गया है मेरे लिए माइंड मैप. अब देखिए सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रॉम्प्ट हम देंगे क्रिएट, और यू कैन से द प्रोवाइड द सेम इन markup format. Markup is the keyword format. आप सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. देखिए, दिस इज द प्रॉम्प्ट, प्रोवाइड द सेम इन मार्कअप फॉर्मेट. अब देखिए, मैंने एंटर किया और इसकी कोडिंग इसने शुरू कर दी. अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है, कोडिंग आ गई. देखिए, और यहां पर देखिए राइट टॉप कॉर्नर यू आर हैविंग ए कॉपी कोड. आपने इसको कॉपी किया, चैट जीपीटी का वर्क इज ओवर. नाउ गो टू द न्यू एड्रेस. अब नाउ सी, यू हैव अनदर वेब एड्रेस, markmap.js.org. इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, markmap.js.org. जस्ट एंटर इट. तो अब देखिए, दिस इज द एड्रेस. मैं अपने पीपीटी में लास्ट में पूरा एक स्लाइड दूंगा. नाउ सी, ट्राई इट आउट. आप यहाँ पे क्लिक करिए. नाउ यू आर इन द माइंड मैप. अब दिस साइड में लेफ्ट जो पेन है, इस टेक्स्ट को आपको रिप्लेस करना है. देखिए, मेरा माइंड मैप बन गया. जो मैंने आपसे वादा किया था ना कि लेस देन 2 मिनट्स, मैं इसको देखिए और खूबसूरत बना सकता हूं. आप डाउनलोड करिए एज ए इंटरेक्टिव. आप इसे इमेज में भी सेव कर सकते हैं. आप यहाँ पे करिए डाउनलोड एज इंटरेक्टिव HTML. मैंने क्लिक किया और देखिए ये डाउनलोड हो गया. HTML फाइल इज देयर, मार्क मैप HTML. आप इसको ओपन करिए. देखिए, सोशल लूफिंग माइंड मैप, उसका कॉन्सेप्ट देखिए, उसकी फीचर्स देखिए, उसकी थ्योरी, हाउ टू मेजर, यूजेस एंड एप्लीकेशन. फ्रेंड्स, you can save it into the image file. You can paste it in your PPT as I did.
and on the basis of this slide you can speak hours to the audience. एक टीचर को तो देखिए आउटलाइन चाहिए, और आउटलाइन भी इस तरह से हो कि द कंप्लीट फ्लो ऑफ ऑल द एक्टिविटीज. अब देखिए डेफिनेशन देखिए, टेंडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सर्ट लेस एफर्ट व्हेन वर्किंग इन ए ग्रुप कंपेयर टू वर्किंग अलोन. जब अकेले काम करते हैं तो आप बहुत डिफरेंट काम करते हैं, लेकिन जब ग्रुप में होते हैं तो आप कम काम करते हैं कि दूसरे कर रहे हैं ना, मैं क्यों करूं. Everything is on the basis of research. How to measure? Observation, performance matrices, questionnaire survey and behavioral experiment. आपने टास्क दिया, इतने प्रोडक्ट्स आपको ये 6 घंटे में बनाने हैं, ये टास्क करना है, इतना डेटा कलेक्ट करना है, इतना डेटा एंटर करना है. यूजेस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, टीम स्पोर्ट्स में, एजुकेशनल सेटिंग्स में, performance management, team building and leadership training. This is one of the concept only. In any of the discipline or any of the subject, you can use this application for moving on. Even की research से related any of the topic आप इसके सामने रखिए, जो मैंने आपको slide में दिखाया, that you will love to it. तो ये सारी चीजें देखिए जो मैंने आपकी हाउ टू क्रिएट माइंड में, पहली बात मैंने आपसे ये कर दी, एंड दीज आर ऑल द पीपीटीज. वंडरफुल देखिए चीज ये है कि हर एक का हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है. आप देखें कि गाइडेंस देखिए किस हद तक जा रही है. अगर प्लानिंग का आप देखिए एग्जाम्पल, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट प्लानिंग टू रिसर्च द इम्पैक्ट ऑफ रिमोट वर्क ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी starts by defining the scope and creating a timeline for the literature review, data collection, analysis and writing planning. शायद ऐसे रिसर्चर हम बॉदर नहीं करते हैं प्लानिंग को. हम अपने स्टूडेंट्स को भी perhaps we least bothered. मेरे पास सैकड़ों स्टूडेंट्स आते हैं when they have a data. कि सर ये डेटा है, इसको एनालिसिस करनी है. तो आई यूज्ड टू रिएक्ट, आई एम सॉरी, डिड यू अप्रोच्ड मी एट द टाइम ऑफ प्लानिंग? सो हर स्टेज पे आपको एक गाइडेंस मिलेगी थ्रू दिस AI application, and this is wonderful contribution towards the knowledge. इससे आगे बढ़ता हूं. देखिए सर, now coming to the main topic. When you are moving towards research project management, it depends on number of factors, and you need to carefully consider these factors before embarking your journey or working on a research project. The first research problem, you will surprise that, हम बहुत घिसे पिटे वेरिएबल्स अपनी थीसिस में या रिसर्च आर्टिकल में लेकर चलते हैं. Use the AI to give the wonderful title for your research article or research thesis. हमारे लिमिटेशन है. मैंने एक इंस्टीट्यूशन में देखा है कि one of the research scholar was working 2 years. Suddenly she came to know that the same title has been studied by another scholar in a different university. अनएथिकल है, सब बेईमानी है. तो उस बच्ची के आपने 2 साल खा लिए. दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे लिमिटेशन है. व्हेन यू आर ओपन टू द टेक्नोलॉजी, यू कैन एग्जामिन कि इस टॉपिक पे रिसर्च हुई है या नहीं हुई है. देखिए, तो सबसे पहला आता है रिसर्च प्रॉब्लम, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें. इसके लिए 2 एप्लीकेशन है. देखिए, जेमिनाई है एंड क्लिकअप AI की एप्लीकेशन. They can help you to prepare the wonderful. ये सारे स्टेजेस पे सिनॉप्सिस के लिए you can go for site. लिटरेचर रिव्यू के लिए you can go these applications. एनालिसिस के लिए the wonderful application Jamovi. You need not to approach to the SPSS or any other software. Lifetime warranty, better than SPSS in many ways. Series of programs have been conducted by me on Jamovi. आप देखेंगे fraction of second में analysis.
एक्सपर्टीज, हमारे लिमिटेशन होते हैं. वी नीड टू ट्रांसफर और ट्रांसलेट our questionnaire in a different language. We need to start conversation with a person or respondent living in a different zone or state. The Bhashini, the Government of India AI, wonderful application. You are typing your conversation into the English, and the destination person is Tamil. It will convert or translate into the Tamil and convey as you are speaking to him or her. Bhashni, Government of India. Methodology, wonderful application as a survey monkey to design your survey questionnaire. Timeline, Gantt chart, you need to be. Perhaps friends, 12 plus PhDs award ho chuki hain within 9.5 years of stay with the Aligarh Muslim University, Aligarh. आप समझ सकते हैं, सारी PhDs मेरी मिनिमम टाइम में अवार्ड हुई, और उसकी वजह यही रही कि 2 साल था तो 2.25 साल में, 3 साल है तो 3.25 साल और 3.5 साल में. उसकी वजह रही कि आई यूज टू फिक्स द टाइम लाइन फॉर माई स्कॉलर, divide into the weeks and months and year, and every point I have a check timeline. It's very important. Potential challenges in your research might be presentation, again, is very important. When you have been funded by the different agency, you need to give the presentation. You can create the wonderful presentation using the Gamma app of AI, stakeholders and publications. ये सारी चीजें फ्रेंड्स मैंने प्लान किया है. वक्त के लिमिटेशन होते हैं, लेकिन बहुत क्विकली हम बढ़ेंगे. देखिए, हाउ टू कंडक्ट ए रिसर्च, वंडरफुल एप्लीकेशन. देखिए, विजिबिलिटी कम है, मैं पढ़ता हूं. देखिए, सिलेक्ट ए रिसर्च टॉपिक, उससे रिलेटेड सारी वार्निंग आपको मिल रही है. लिटरेचर रिव्यू, कैसे लिटरेचर रिव्यू करना है, सारे इनपुट्स हैं. फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव, सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं. रिसर्च डिजाइन कैसी होनी चाहिए. डेटा कलेक्शन, यू कैन गो फॉर प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा. डेटा एनालिसिस, डेटा का प्रिपरेशन होना चाहिए. एनालिसिस टेक्निक क्या होनी चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा. रिजल्ट्स का प्रेजेंटेशन एज पर APA गाइडलाइन. डिस्कशन एंड कंक्लूजन, report writing, publication and feedback, and ethics in conducting the research. Perhaps देखिए, if I go to the books or the Google, there is all the possibility कि 1-2 steps छूट जाएं, लेकिन देखिए AI से एक भी स्टेप नहीं छूटा. मैंने उससे कहा हाउ टू कंडक्ट ए रिसर्च, यार बताओ मुझे. यही तो हमारे गाइड करते हैं, यही तो हमारे टीचर करते हैं. हम उनका वक्त एज ए मंत्र के लिए इस्तेमाल करें. द टास्क विच वी कैन एंजॉय, वी कैन वर्क, वी नीड टू अकम्प्लिश इट. इसीलिए रफ्तार देखिए रिसर्च की और आउटपुट की बढ़ती है. यू कैन मेक ए डिफरेंस. फाइन. चूजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, बहुत वंडरफुल मटेरियल है. डिफाइन द इशू, scope and focus, significance and originality, ethical considerations, and research methodology. Reflect on your interest and passion. सबसे पहले, this is a very important point. जब भी रिसर्च स्कॉलर आपके पास आए, या जब भी आप किसी फंडिंग एजेंसी को अप्रोच कर रहे हैं विद रिसर्च प्रोजेक्ट, प्लीज डू नॉट कंप्रोमाइज विद द इंटरेस्ट. अपने स्कॉलर से पूछिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है. वंस यू आर एबल टू सीक द इंटरेस्ट ऑफ द स्कॉलर और जज योर सेल्फ इंटरेस्ट, हाफ वर्क डन. हम एक जुनून में, जोश में, पर्सन वाई कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, हम कोई भी प्रॉब्लम ले लेते हैं. ऐसा नहीं करिए. पैशन, इंटरेस्ट,
तभी तो रिसर्च में देखिए बहुत बड़े काम हम नहीं कर पाते हैं। उसके लिमिटेशन ये है कि हमारे लिमिटेशन है बहुत सारे रिसोर्सेज के, लेकिन इट इज ए लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस बहुत ही इंटरटेनिंग होनी चाहिए, फुल ऑफ एंजॉयमेंट होनी चाहिए। वो तभी होगी जब इंटरेस्ट और पैशन आप इंश्योर कर पाएंगे। एक्सप्लोर करंट रिसर्च एंड आइडेंटिफाई द गैप, कंसल्ट विद द मेंटोर्स एंड एक्सपर्ट्स, कंसिडर प्रैक्टिकल फैक्टर्स एंड इंश्योर एथिकल प्रैक्टिसेस। बहुत वंडरफुल है। नेक्स्ट एप्लीकेशन मैं आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए, हाउ टू डिसाइड द रिसर्च टाइटल। प्लीज स्टे बैक विद मी। और ये सारे जहां तक मुझे ताल्लुक है, HRDC रिकॉर्डिंग कर रही है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। क्लिक अप जो देखिए एक एप्लीकेशन है AI की, मैं अब उसमें ला रहा हूं आपको। ट्राई फॉर फ्री। फाइन, you can continue with the Google. फाइन, देखिए बहुत सारी चीजें हैं इस एप्लीकेशन में। डैशबोर्ड, टाइम शीट, आपके टीम के बारे में टास्क, दुनिया भर के टास्क आप उनको अलॉट कर सकते हैं। यू कैन हैव ए चेक पॉइंट, हर चीज यहाँ पे आप ले सकते हैं। यू कैन वर्क एनी ऑफ द टॉपिक, यू कैन व्यू, यू कैन लिस्ट, सारी चीजें यहाँ पे। क्रिएट द स्पेस फॉर योर टीम मेंबर्स। फाइन, वंडरफुल एप्लीकेशन, इसको मैंने काफी यूज कर लिया है। तो actually free, whatever the AI application you are using, it has little limitation. लेकिन एक रिसर्च के लिए few hundred rupees पर मंथ देना या कुछ हफ्तों के लिए देना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। When you are working or when you are planning for the wonderful research, तो इतना तो कंट्रीब्यूशन बनता है, इतना तो हमें करना चाहिए। मैं दूसरी एप्लीकेशन लेता हूँ, जेमिनाई। देखिए, जो मैंने जेमिनाई में हम ये काम करते हैं। देखिए, मैं एक बहुत ही एक खूबसूरत, देखिए एक मैंने ये लिखा है प्रॉम्प्ट। देखिए, अगर आप पढ़ पा रहे हैं। आई एम एन अंडर ग्रेजुएट एजुकेटर interested in developing a research proposal on stress management among undergraduate students. I plan to submit this proposal to a funding agency and would appreciate your assistance in preparing it. Use your own knowledge. अब देखिए, ये प्रॉम्प्ट अगर मैं देता हूं जेमिनाई के लिए, पूरी की पूरी सिनॉप्सिस बन के मेरे सामने होगी। देखिए, मैंने दिया। You need to be very clear about the prompt. जितनी क्लैरिटी आपके प्रोपोजल प्रॉम्प्ट में रहेगी, इतना ही वंडरफुल आपका आउटकम रहेगा। एल्स ये भी तो समझता है कि प्रॉम्प्ट देने वाला या सवाल पूछने वाला उसका IQ क्या है। अब देखिए, क्राफ्टिंग ए रिसर्च प्रपोजल ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, उसने बताया पहले आपको, समझाया उसने। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए उसने बना दिए। देखिए, assess the prevalence and severity of stress among undergraduate students, identify the primary sources of stress, methodology। देखिए, सर्वे डिजाइन, रिसर्च, qualitative research, interviews and focus group, data analysis, it is guiding you, quantitative such as descriptive statistics, correlation and regression, thematic analysis for the qualitative data, it is guiding you, expected outcomes भी आपको दे रहा है, implication of the research आपके सामने है, funding request that you need to make,
टाइमलाइन यू नीड टू इंश्योर कि कितने महीने और साल में आपको काम करना है। एक बेस लाइन प्रपोजल और सिनॉप्सिस आपके पास तैयार हो गया। एक्सक्यूज मी सर, इसको आप एलोबरेट करिए, इसको आप इनरिच करिए यूजिंग योर ओन नॉलेज। यस सर, बताएं सर। सर अगर अगर प्रॉम्प्ट पर हमने क्वेरी जो है सेम क्वेरी बार बार देंगे, सेम रिजल्ट आएगा या डिफरेंट रिजल्ट आएगा? थोड़ा डिफरेंट आएगा। अच्छा, every time it is using AI। ओके। फाइन अगर सर। हमने एक मशीन पे कुछ क्वेरी दी, दूसरी डिवाइस पे सेम क्वेरी दूसरी डिवाइस पे दी, रिजल्ट और इट विल बी साइंटिफिकली वैलिड एज वेल। देखिए, एक बात को लिखने के कई ढंग होते हैं ना, जी जी, तो इसी तरह से AI इस्तेमाल करता है। ओके फाइन सर, मैं आगे बढ़ता हूं सर। थोड़ा सर। सा क्वेश्चंस मैं आपके एड्रेस बाद में करूंगा। अब देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट अमंग अंडर ग्रेजुएट्स मैं स्टडी करना चाहता हूं। अब इस टॉपिक को भी मैं चेंज करना चाहता हूं। देखिए, प्लीज suggest me different titles for। अब विद इन कोट आप ये डाल दीजिए। आपने सीधा सीधा रखा है स्ट्रेस मैनेजमेंट अमंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। हमने क्या है, हमें दूसरे ढंग से टाइटल्स दीजिए। ओके करिए। और अब देखिए, ये आपके सामने देखिए किस तरह से टाइटल दे रहा है। मैनेजिंग स्ट्रेस इन कॉलेज, ए comprehensive study seems more informative। undergraduate stress, causes, consequences and coping strategies। किसी भी फंडिंग एजेंसी या इंस्टीट्यूशन को ये फर्स्ट इंप्रेशन ये जाना चाहिए कि कुछ डिफरेंट है, कुछ डेफिनेटली इससे आएगा। अगर इस टाइटल पे आप जाएं, देखिए इसमें कोई रिसर्च नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट अमंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें हिडन है। लेकिन इसी बात को जब देखिए इस तरह से कहते हैं, एक वंडरफुल नॉलेज। मेरा सवाल आपके सामने यही है। सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स मैं इस टॉपिक पर कर चुका हूं। एक दो जगह, तीन जगह कुछ इस तरह का सवाल आया कि सर क्या ये इथिकल है। आई एम सॉरी, ये सवाल वो पूछते हैं, दे आर अफ्रेड ऑफ द टेक्नोलॉजी, दे आर अफ्रेड ऑफ प्लेइंग विद द टेक्नोलॉजी। आप ये देखिए ना, ये सारा काम जो मैनुअल है, जो रिपीटेटिव है, आपके लिए कितने खूबसूरत वर्ड्स लेकर आ रहा है। नीचे देखिए, थॉट प्रोवोकिंग, स्ट्रेसर्स एंड सपोर्ट्स, नेविगेटिंग कॉलेज लाइफ, बियॉन्ड द बुक्स। नेक्स्ट देखिए, बियॉन्ड द बुक्स, अंडरस्टैंडिंग अंडर ग्रेजुएट स्ट्रेस, अनवाइंडिंग द स्ट्रेस, ए गाइड फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। नीचे देखिए, एकेडमिक एंजाइटी, ए कैटलिस्ट फॉर स्ट्रेस इन वर्डिंग। देखिए, हम नहीं कर सकते, सब हमारे लिमिटेशन है। इसीलिए हमारे रिसर्च का लेवल यू कैन नॉट इमेजिन। आई एम सॉरी टू शेयर विद यू, ज्यादातर केसेस में 99% केसेस में यही होता है कि हमारी PhD अवार्ड हो जाती है और वी रियरली यूज टू ओपन इट। हमें डर लगता है उसको, क्योंकि वी नो द लिमिटेशंस। मैं अपने स्कॉलर्स को नंबर ऑफ वर्कशॉप्स में इसी तरह से बात करता हूँ, प्लीज ट्रीट योर थीसिस लाइक योर बेबी। जिस तरह से हम अपने बच्चे को सबसे अच्छा देखना चाहते हैं, इसी तरह से वी नीड टू थिंक अबाउट द डिसर्टेशन। इट इज ए नॉलेज। वो तभी पॉसिबल है जब हम टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो साहब, इस देखिए रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में मैं, और देखिए इट विल नॉट माइंड, आप मोर लिख दीजिए, यू विल हैव एन नंबर ऑफ टॉपिक्स एज वेल, ये नहीं थकेगा। और आप मोर लिखते जाइए। जो अभी सर मुझसे सवाल पूछ रहे थे, देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट आपको टाइटल मिलेगा। अब देखिए इसमें स्ट्रेस इन द स्टेम फील्ड, एक नया चीज आ गया। फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स एंड स्ट्रेस, यूनिक चैलेंजेस एंड कोपिंग मैकेनिज्म। अभी 10 तारीख को सुसाइडल डे बनाया गया है। देखिए हम लोग सभी किस कदर वरीड हैं। पिछले महीने मैंने इग्नू के लिए 10 डेज का वर्कशॉप किया था मेंटल हेल्थ पे।
तो नवोदय विद्यालय इट इज रेजिडेंशियल विद्यालय, वहां पे सुसाइड रेट बढ़ा है। तो उनकी अप्रोच क्या है कि दे आर प्लानिंग टू ट्रेन एवरी टीचर एज ए काउंसलर, क्योंकि फर्स्ट एड अगर क्लास में अगर मिल जाती है बच्चे को, देखिए जब आप क्लास में जाते हैं तो एक नजर से बच्चे को देख लेते हैं कि उसके स्ट्रेस का लेवल क्या है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, उसका अटेंटिवनेस क्या है, उसका विजिलेंस बिहेवियर क्या है। एक बार देखा, दो बार देखा, देन यू कैन एक्ट एज ए काउंसलर। तो ये सारी चीजें सर हमें टेकअप करनी पड़ेंगी टू मेक ए डिफरेंस। सॉरी, so this is very important that you need to think in a different way as a researcher or academician. मैंने आपसे बात की सब how to frame the title, moving ahead, research questions and objective. ये सारी स्लाइड्स आपके साथ रहेंगी। क्लैरिटी, क्वेश्चन में क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चंस एड्रेस होने चाहिए, उसका रिलेवेंस, उसकी फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब है यू हैव लिमिटेशंस, टाइम, रिसोर्सेज एंड डेटा ऑल्सो। हर तरह का डेटा हर तरह के क्वेश्चन को आंसर नहीं दे सकता। यू नीड टू इंश्योर अबाउट द फिजिबिलिटी। ऑफ कोर्स द इंटरेस्ट, जेन्युइनली इंटरेस्ट यू, एक ऐसी हाइपोथेसिस, एक ऐसा गोल, एक ऐसा एम जिसको करने में आपको मजा आए, कुछ डिफरेंट फीलिंग आए, यस आई डिड इट। जैसे अभी फैसल साहब ने इंट्रोड्यूस किया, माय ग्रेटिट्यूड टू हिम, आई वाज अ वेरी सीनियर ऑफिसर ओवर द इंडियन रेलवेज। I was responsible for selection of safety categories staff through psychological test. And whenever there is an accident, causes of human error in train operation. मैं R&D ऑर्गेनाइजेशन में था। बहुत बड़ा प्रोटोकॉल था साहब, क्योंकि मैं सिलेक्शंस के लिए जिम्मेदार था ऑल इंडिया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि यार गवर्नमेंट सेटअप है, आप कितने भी 100% हैं, आई यूज्ड टू बी 100%, लेकिन बॉस पल भर में डाउन कर देता था, कर देते हैं। सरकार में तो देखिए दो ही कैटेगरीज होती हैं, एक अधिकारी होता है और एक कर्मचारी होता है। और अधिकारियों में भी क्लासिफिकेशन होता है कि प्रोमोटी है या डायरेक्ट है। और ये डिस्टेंस इतनी बड़ी होती है, जस्ट लाइक द ब्रिटिशर्स एंड इंडियन। तो मुझे मैनी टाइम्स लगता था कि यार ऑटोनॉमी नहीं है बिल्कुल, कि मुझे जो अच्छा लगता है एज ए टीचर टू शेयर माय नॉलेज। जो 5वां पॉइंट जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसके लिए बहुत मुझे एफर्ट करना पड़ा। थैंक्स गॉड आई गॉट द पैशन, आई गॉट द इंटरेस्ट, एंड आई एम ट्राइंग टू बी at the expectations of the different stakeholders. Objective and hypothesis की बात, और इसके बाद देखिए मैंने ये भी चीज आपके साथ, कोहरे भी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है AI की, जिसके थ्रू बहुत वंडरफुल क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। जैसे पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, यहीं पे यू कैन आस्क एंड मोर, आप कह के देखिए। अब एक स्टडी आप यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए हम ये ले लेते हैं, दिस इज द स्टडी मैंने लिया, आई एम स्टडीइंग ऑन द टॉपिक बिल्कुल अनइथिकल नहीं है साहब, ट्रस्ट मी, यही सब हम करते हैं। जो 2 साल के लिए बच्चे को लाइब्रेरी और रिसर्च आर्टिकल और इनके बीच में फंसा के डाल देते हैं ना, वहां भी वही करता है, कट एंड पेस्ट। हम और आप भी यही करते हैं, क्लास को तैयार करने से पहले कहीं से पोर्शन कहीं से ले लिया, कहीं से ले लिया। माय पॉइंट इज दैट ये लेना तो बहुत नेचुरल है, लेकिन डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसमें फ्लेवर ऐड ऑन करें, आप उसमें वंडरफुल अपना बॉडी लैंग्वेज और अपना प्रेजेंटेशन लाएं, जिससे कि ऑडियंस के लिए अपीलिंग हो। अब ये देखिए, आई एम स्टडीइंग ऑन द टॉपिक, ठीक है। अब आगे देखिए प्लीज,
suggest me 5 objectives. देखिए मैंने इसको दे दिया, अब देखिए इसका काम शुरू हो गया। देखिए ऑब्जेक्टिव आ गया, उसने 5 ऑब्जेक्टिव्स मुझे दे दिए। अब देखिए और इससे कह दीजिए हाइपोथेसिस भी इससे मांग लीजिए, हाइपोथेसिस भी मुझे बता दें। लीजिए, there is a significant positive directional hypothesis. You can ask the a non-directional hypothesis as well. क्या चाहिए सर? क्यों नहीं हम इस तरह से काम कर सकते? मैं तो कई साल से कर रहा हूँ सर, मुझे तो कहीं चैलेंज नहीं आया। और यहाँ तक भी है, आई एम सॉरी टू शेयर विद यू, मैं शायद बहुत ओपन हूँ इस मामले में। मैं अभी 2 दिन पहले एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बोल रहा था, तो वहां पे मेरा टॉक था कल्टीवेटिंग ग्रोथ माइंडसेट। माइंडसेट 2 तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड और ग्रोथ। फिक्स्ड माइंडसेट के बहुत लिमिटेशंस हैं। जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, वो बहुत इंक्लूसिव होते हैं, और दे आर हाईली ओपन टुवर्ड्स वर्ल्ड। तो मैंने जो अभी आपसे ये बात कहने के लिए जो मैंने ग्राउंड आपसे तैयार किया, ग्राउंड ये है कि माई डॉटर एंड सन इन लॉ इज वर्किंग इन बेल्जियम, and my daughter is responsible for selection of chief executive officers for industry. यूरोप में कि रिक्विजिशन आता है कि ये हमारी जॉब प्रोफाइल है, हमारे लिए सीईओ का सिलेक्शन करिए। My son and daughter-in-law, they are working in Amsterdam and Netherlands. चारों की बैकग्राउंड बीटेक और एमबीए है। मैं अक्सर उनसे बात करता हूं कि बेटे एआई का यूज डिसीजन मेकिंग के लिए किस हद तक कर रहे हैं। They used to share कि पापा that you cannot imagine। तो इसीलिए शायद हम अपनी चीजों को इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड होता है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, कि हम इन्हीं चक्करों में पड़े हैं, ये एथिकल अनएथिकल। तो सर आई अपील यू, इट इज यू टू डिसाइड कि किस तरह से आप मेरी बात को लेते हैं। लेकिन देखिए, to succeed in your endeavor, whatever the project you have in your hand, perhaps मेरे लिए तो अचीवमेंट की वजह यही हो सकता है कि मैं बहुत आउटस्टैंडिंग और अमेजिंग टीचर नहीं हूँ। फैसल साहब ने देखिए केरला से मुझे याद किया, जबकि केरला और अलीगढ़ के बीच में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने आउटस्टैंडिंग टीचर्स हैं। इट मेक्स ए डिफरेंस। आप इस तरह से टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करिए। लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है रिसर्च का, सालों साल लग जाते हैं सर। एक बात और सर अदब के साथ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि 11 PhDs अवार्ड होने के बाद माई स्कॉलर्स आर वर्किंग एज ए क्लास 1 ऑफिसर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, काउंसलर और हायर स्टडीज अब्रॉड एज वेल। द मेरिट ऑफ द थीसिस, the presentation of the findings, मैं कर पा रहा हूं सर। लिटरेचर रिव्यू, अब देखिए हम तो ये कह रहे हैं हम 1 साल का वक्त स्कॉलर को देते हैं। यूज द टेक्नोलॉजी, सिर्फ 1 हफ्ता बहुत है, 1 week only. Use the application and you will see the wonderful information with you as a literature, and it will guide you to understand or to examine the gap. आपको रिसर्च कहाँ से शुरू करनी है, जो कि शायद महीनों लग जाते हैं हमें थीसिस, बहुत सारी थीसिस को विजिट करने में, बहुत सारे इंटरनेट को सर्च करने में, और वहां तक तो फिर सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है हमारे स्कॉलर का। लिटरेचर रिव्यू देखिए, इसके लिए मैं फिर ये सारा तो चीजें आप देख लेंगे। आप बहुत ही अमेजिंग पार्टिसिपेंट्स हैं।
मैं टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा आपको लाना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। अब देखिए रिसर्च रैबिट के बारे में हम बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू के लिए। इट इज वन ऑफ द एआई एप्लीकेशन रिसर्च रैबिट। मैं इस पर आता हूं साहब, देखिए रिसर्च रैबिट। आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के लिए आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए। शायद मैंने कहीं लिखा था, perhaps I forget it. Please give me a time. I have this. Yes, I got it. Fine sir, this is research rabbit. अब देखिए मैं यहाँ पर I will go for the new collection. मैं अपने आर्टिकल का नाम दे सकता हूँ, अपना कोर्स का नाम दे सकता हूँ, अपने स्टूडेंट का नाम दे सकता हूँ। मान लीजिए मैं नाम देता हूँ फिरोज माई स्कॉलर। ये देखिए उसके लिए मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया, अब देखिए मैं ये जानना चाहता हूँ, आई विश टू आइडेंटिफाई द रिसर्च। मैं रिसर्च आर्टिकल्स अपने टॉपिक पर सर्च करना चाहता हूँ। तो एक मैं देखिए जो मैंने प्रॉम्प्ट तैयार किया था, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैंने इस पे काम किया है। लिटरेलिटी एंड एक्सीडेंट प्रोननेस। देखिए ये है टाइटल मेरा। इंडियन रेलवेज में मैंने बहुत काम किया है, बहुत अच्छे मेरे। आप यहाँ पे टाइटल पेस्ट कर सकते हैं, DOI पेस्ट कर सकते हैं, PMID पेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे एंटर किया मैंने। फाइन। अब देखिए मैं इस पे सर्च कर रहा हूँ कि बताइए मुझे। फाइन। 2006 में जब मैं इंडियन रेलवेज में था, तो देखिए ये स्टडी, ये भूषण साहब IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं। ही इज द डिप्टी डायरेक्टर IIT कानपुर राइट नाउ। उनके साथ में ये मेरा पब्लिकेशन था। फाइन। मुझे एक आर्टिकल, अपना बेस आर्टिकल में लेकर चलना चाह रहा हूँ। लेटरलिटी का मतलब है साइडेडनेस। अगर लेफ्ट हैंड डोमिनेंट है तो इरेगुलरिटी इंडेक्स पर क्या असर पड़ेगा। लेफ्ट आई है, लेफ्ट ईयर है, लेफ्ट फुट है, लेफ्ट हेमिस्फीयर है, तो इरेगुलरिटी इंडेक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये लोकोमोटिव ड्राइवर्स के ऊपर स्टडी थी। अब देखिए मैंने इसको ऐड कर दिया। क्या आया, वन पेपर एडिट टू द फिरोज फोल्डर। मैंने क्लोज कर दिया। देख रहे हैं साहब, ये मेरा आर्टिकल ये ऐड हो गया। अब देखिए जैसे ही मैंने ये ऐड हुआ, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आ गई कि 927 सिमिलर वर्क हुआ है। एग्जैक्ट वर्क नहीं हुआ है, सिमिलर। 42 ऑथर्स ने मेरे इस आर्टिकल को रेफर किया है, रेफरेंस कोट किया है। साइटेशंस 20, 2 ऑथर्स हैं, सजेस्टेड ऑथर्स 4। अब जैसे देखिए मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखिए उसका इस एब्स्ट्रैक्ट पूरा आ गया, और मैं इसको कॉपी करके आई कैन पेस्ट इट इनटू द माय लिटरेचर रिव्यू। और यहीं से अगर आप जाते हैं जैसे ऑल रेफरेंसेस, आप इसे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद देखिए ये सारे 42 रिसर्च आर्टिकल्स आ गए, जिन लोगों ने मेरे टास्क को, देखिए हेड इंजुरीज एट वर्क, जिन लोगों ने मेरे काम को, लेफ्ट हैंडेडनेस एंड एक्सीडेंट, आप देख रहे हैं सर, लिटरल प्रेफरेंसेस एंड ह्यूमन बिहेवियर। गूगल तो आपको ये नहीं दे सकता, कोई भी लाइब्रेरी आपको नहीं दे सकती। देखिए लेफ्ट हैंडेडनेस ए मार्कर फॉर डिक्रीज सर्वाइवल फिटनेस, वंडरफुल एप्लीकेशन। यहां पे देखिए नेटवर्क जो 42 में बता रहा हूं, देखिए किस ईयर में कहा किस ऑथर ने आपके रिसर्च आर्टिकल को रेफर किया है। टाइमलाइन देखिए,
टाइमलाइन में आ जाइए, ईयर में देखिए 2006 में हमारा पब्लिकेशन था, सारे लिंकेजेस आ गए 2000 में, वगैरह 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 वगैरह। किसी एक ऑथर को पिकअप कर लीजिए, यहां से लीजिए और फिर देखिए इस तरह से और एक्सप्लोर करते जाइए। एक हफ्ते से ज्यादा का काम नहीं है साहब। वंडरफुल एप्लीकेशन। देखिए, और ब्यूटी ये है कि ये सारी चीजें इतना कनेक्टेड हैं कि आप जोटेरो से कनेक्ट कर सकते हैं इसे। इट इज ऑलरेडी देयर, ऑटोमेटिकली लिंक वहां चला जाएगा, साइटेशन पूरा आ जाएगा। यू नीड नॉट टू मेक ए रिकॉर्ड एनीवेयर एल्स। कितने आर्टिकल्स आपने पढ़े और वहां से क्या आपको इनपुट्स मिले, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू कंट्रोल ओवर हियर। बहुत जरूरी है साहब। इस तरह से देखिए, एब्स्ट्रैक्ट मैंने क्लिक किया, इसका एब्स्ट्रैक्ट आ गया। आप कॉपी करिए, पेस्ट कर लीजिए अपने डॉक्यूमेंट में। लिटरेचर रिव्यू, स्पेशली लिटरेचर रिव्यू, प्लेगरिज्म वाला जो इशू होता है, इट इज अवे फ्रॉम द एनी इशू, क्योंकि वहां तो आपको सिमिलरिटी काफी हद तक मिलनी है। तो यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट के साहब यहाँ तो ये चीज हो जाएगी, वो हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो दिस एप्लीकेशन आई प्लान टू डिस्कस विद यू, रिसर्च रैबिट। वक्त थोड़ा कम होता है इस टॉक के लिए, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा बात करना चाहता हूँ रिसर्च रैबिट के बारे में, की रिसोर्सेज के बारे में। देखिए आपके पास कितनी रिसोर्सेज हैं प्रोजेक्ट को करने के लिए। रिसर्च टूल्स आपके पास कितने हैं, ग्रामरली, टर्निटिन, देखिए प्लेगरिज्म के लिए एप्लीकेशन है। नॉर्मली नहीं होता है लेकिन इंस्टीट्यूशन के पास होता है। फंडिंग का क्या इशू है, डेटा कलेक्शन आप कैसे करने जा रहे हैं, डेटा एनालिसिस कैसे करने जा रहे हैं। रिसोर्सेज के बारे में बहुत जरूरी है। बिफोर एम्बार्किंग योर जर्नी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिसोर्सेज के बारे में ख्याल रखें, तभी प्रोजेक्ट को टेकअप करें। कोलैबोरेशंस आप किस तरह के कर सकते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च होनी चाहिए। अगर को-ऑथर्स भी एक थीसिस में, आर्टिकल में होते हैं तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है। परहैप्स, पता नहीं साहब, मैं तो इस क्वेश्चन का अक्सर सवाल नहीं मुझे जवाब नहीं मिल पाता है कि व्हाई वी आर अफ्रेड पर्सन व्हाई विल बी फेमिलियर अबाउट माय रिसर्च। वो मेरी रिसर्च को चुरा लेगा, वो मेरे आइडिया को चुरा लेगा, वो मेरी नॉलेज को चुरा। मुझे तो नहीं लगता ये इस तरह की सोच गलत है। एक बहुत ही इंटरनल प्रोग्राम चल रहा था इन हाउस, तो बहुत बड़े बड़े एकेडमिशियंस थे उसमें। तो एक मेरे बहुत अच्छे वेल विशर हैं, जब प्रोग्राम कंक्लूड हुआ देन ही कोटेड जो कंक्लूडिंग रिमार्क था, तो उन्होंने इस तरह से कोट किया कि डॉक्टर खान तो ऐसे हैं कि जो जानते हैं वो सारी चीजें शेयर कर डालते हैं। मुझे नहीं लगता है सब टीचर के पास कुछ छिपाने के लिए होता है। अब आपके साथ ये जो मुलाकात हो रही है, हो सकता है कि दोबारा मुलाकात ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा इनपुट मिल जाता है तो शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता है कि एक टीचर था जिसने ये बात हमसे शेयर की। और हमारा हमारा सोचना ये भी है कि सब ये सदका भी है, इनके मरने के बाद भी हमें इसका बदला मिलेगा। We need to be little positive or different about this aspect. जब भी डेटा एनालिसिस की बात आती है, सब तीन क्वेश्चंस का जवाब देना होगा आपका कि हाउ टू चूज द एप्रोप्रिएट टेस्ट फॉर द एनालिसिस, व्हाट टाइप ऑफ डेटा डू यू हैव, कैटेगोरिकल और क्वांटिटेटिव, how many samples do you have, one sample, two samples independent, or two samples paired, or more than two samples. और थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द टेस्ट सपोज टू डू। स्टैटिस्टिक्स में ये दो ही काम हम करते हैं, या तो कंपैरिजन करते हैं या ट्राइंग टू सीक द रिलेशनशिप। इन्हीं के चारों तरफ सारी स्टैटिस्टिकल टेस्ट और टेक्निक्स हैं सब। या तो कंपेयर करेंगे या वी विल ट्राई टू एग्जामिन द रिलेशनशिप और डेवलप द काउजल इफेक्ट, एग्जामिन द काउजल इफेक्ट। इन तीन क्वेश्चंस का आप जवाब देंगे तो देखिए ये तीनों क्वेश्चंस में एक स्लाइड में लाया हूं, किस तरह का डेटा आपके पास है। कैटेगोरिकल, अगर कैटेगोरिकल वन सैंपल है तो यू विल गो फॉर प्रोपोर्शन,
और परसेंटेज, 2 सैंपल्स है तो प्रोपोर्शन और परसेंटेज। अगर 2 सैंपल्स हैं और डेटा आपका क्वांटिटेटिव है तो देखिए यू विल गो फॉर 1 सैंपल टी टेस्ट और 2 सैंपल टी टेस्ट और पेयर टेस्ट। अगर 2 से ज्यादा ग्रुप्स आपको कंपैरिजन करने हैं तो यू विल गो फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कंपैरिजन। अगर आपको कोरिलेशनल स्टडी है तो यू विल गो फॉर कोरिलेशंस और रिग्रेशन। 3 क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। व्हाट टाइप ऑफ डेटा डू यू हैव, हाउ मेनी सैंपल्स आई हैव, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ आउट ऑफ द डेटा। किसी स्टैटिस्टिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये स्लाइड बहुत खूबसूरत है साहब। 2002 में प्रोफेसर राजीव पांडे साहब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी हैं, उनके साथ हमने ये काम किया था। इस स्लाइड को प्रिंट करके अगर अपनी डेस्क पर रखते हैं तो ट्रस्ट मी आपको किसी भी स्टैटिस्टिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन चूज द राइट टेस्ट, यू कैन एनालाइज द डेटा। जिस तरह से देखिए RI का मतलब क्या है, आपका स्केलिंग डेटा का क्या है, इंटरवल और रेशियो, ऑर्डिनल और नॉमिनल। क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसी एक को ले लीजिए, कंपैरिजन ऑफ द ग्रुप टू ए हाइपोथेटिकल वैल्यू। अगर RI है, रेशियो और इंटरवल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म हो रहा है तो यू विल गो फॉर 1 सैंपल टी टेस्ट, एल्स विल्कॉक्सन टेस्ट। इसी तरह से कंप्लीट स्लाइड, सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट देखिए इस स्लाइड में आए हैं। अगर कोरिलेशन की बात कर रहे हैं तो देखिए यहां से आइए आप। अगर डेटा आपका रेशियो और इंटरवल पर है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म हो रहा है वेरिएबल्स का, देन यू विल गो फॉर पियर्सन कोरिलेशन। अगर नहीं हो रहा है तो देन यू विल गो फॉर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। वंडरफुल स्लाइड। मैंने सेंसिटाइज किया आपको डेटा के बारे में, हाउ टू चूज द राइट स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए ये जो एप्लीकेशन है, इट इज फ्रीली अवेलेबल, लाइफ टाइम वैलिडिटी। इट इज ओनली 260 MB सॉफ्टवेयर। गूगल पे आप टाइप करिए जेमोवी एंड लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये एप्लीकेशन रहेगी एंड यू कैन एनालाइज द डेटा बेटर देन SPSS इन मेनी वेज। देखिए इस एप्लीकेशन को मैं चला रहा हूं साहब आपके सामने, जस्ट लाइक द SPSS। यहां डायरेक्टली आप एंटर कर सकते हैं डेटा। देखिए मैं कर रहा हूं, फाइन सर। और यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आप एंटर कर सकते हैं। जो लोग फेमिलियर हैं SPSS से वो अच्छी तरह समझ रहे हो। अब देखिए ABC, मैं वेरिएबल का नाम चेंज करना चाहता हूं, मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए ये आ गया, इट इज ID। अब उसका मेजर टाइप क्या है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, कंटिन्यूअस है, ऑटोमेटिक सारी चीजें कंट्रोल है। यहाँ पे देखिए ID चेंज हो गया। दूसरा क्या है, जेंडर, नॉमिनल है। अब देखिए 1 अगर है तो ये फीमेल है, अगर 2 है तो ये मेल है। तीसरा देखिए, तीसरा वेरिएबल एज। मेरा डेटा तैयार हो गया। अब देखिए फ्रीक्वेंसीज में जा रहा हूं, मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे निकालना है, जस्ट लाइक द SPSS। आपने जेंडर यहाँ पे लिया, देखिए फ्रीक्वेंसी आ गई, कंप्लीट टेबल। आपको एक्सप्लोरेशन में आइए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एज का आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चाहिए, देखिए सारी स्टैटिस्टिक्स आ गई। बाई जेंडर चाहिए, स्प्लिट बाई, देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए फीमेल का मीन कितना है, मेल का कितना है, जस्ट क्लिक अवे। अब देखिए यू कैन एंटर द डेटा। अगर आप चाहते हैं ऑलरेडी डेटा डिफरेंट एप्लीकेशन में, अगर डिफरेंट एप्लीकेशन में एंटर्ड है तो उसे कैसे एनालाइज करेंगे। देखिए मैंने ओपन किया, ब्राउज में आया और आई विल गो टू द फोल्डर जहां पे मेरा डेटा है। perhaps it may be here, let me check it. yes, एम्प्लॉय डेटा, देखिए SPSS का डेटा है सारा। मैंने एम्प्लॉय डेटा को ओपन किया, देखिए SPSS का पूरा डेटा मेरा ये जेमोवी में आ गया, 474 का डेटा। फाइन सर। अब देखिए मैं फ्रीक्वेंसी कंप्यूट करूं, देखिए फ्रीक्वेंसी में आइए और
जेंडर देखिए मैंने लिया 474 का डेटा है, सारी स्टैटिस्टिक्स आ गई। अब देखिए मैं हाइपोथेसिस टेस्ट करता हूँ, टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट देखिए, सैलरी, करंट सैलरी, बिगनिंग्स, बस यही लेते हैं। ग्रुपिंग वेरिएबल मेरे केस में है जेंडर, देखिए ये स्टैटिस्टिक्स आ गई। आई एम सॉरी, थोड़ा स्पीड ज्यादा हो सकती है क्योंकि इसलिए आई एम स्पीकिंग टू द टीचर्स और ज्यादा चीजें डिस्कस करनी है। देखिए इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट, ये टी की वैल्यू, ये डीएफ, इंडिपेंडेंट सैंपल्स में डीएफ इज n-2 एंड दिस द पी वैल्यू, सिग्निफिकेंस लेवल। और देखिए बहुत सारी चीजें, जस्ट मीन डिफरेंस आपने क्लिक किया, दोनों का मीन डिफरेंस आ गया। कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस आ गया। इफेक्ट साइज एसपीएसएस नहीं देता है, इफेक्ट साइज कंप्यूट हो गया। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपको चाहिए, मेल फीमेल की अलग, सारी चीज आ गई। और assumptions वेरिफिकेशन, होमोजेनिटी, नॉर्मलिटी, क्यूकी प्लॉट, जस्ट क्लिक अवे साहब। I've been using SPSS and computer from 1986. मैं तो बहुत कन्विंस हूँ सर, you need not to go for SPSS or any other application, this will make a difference. Okay, analysis of variance, regression, you can develop the regression. For example, linear regression देखिए, dependent variable आपकी current salary है and the independent variable is the beginning salary. अब देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू 0.775, सारी स्टैटिस्टिक्स आ गई। बहुत खूबसूरत चीजें अंदर देखिए, मॉडल बिल्डिंग देखिए, अजम्पशंस चेक देखिए, सारे अजम्पशंस आप चेक कर लेंगे। मॉडल फिट देखिए, आर स्क्वायर की वैल्यू, एफ टेस्ट देखिए, एफ टेस्ट सिग्निफिकेंट, ये एफ की वैल्यू आ गई, ये मॉडल भी सिग्निफिकेंट हो गया। मॉडल कोफिशिएंट देखिए सर, स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट क्योंकि चाहिए रिग्रेशन में। फाइन, कॉन्फिडेंस इंटरवल, एनोवा टेस्ट, सारी चीजें हैं सर। आप यहां से कॉपी करिए और एक्सपोर्ट कर दीजिए, और कॉपी करिए आप पेस्ट कर लीजिए, वर्ड में ले जाइए, जैसे चाहे एडिट करिए। ब्यूटी देखिए, फैक्टर एनालिसिस, रिलायबिलिटी एनालिसिस, पीसीए, ईएफए, कन्फर्मेटिव फैक्टर एनालिसिस। एक डेटा और मैं आपके साथ एनालिसिस करता हूं, ओपन किया मैंने, देखिए लेट मी ओपन द डेटा। अगर रिलायबिलिटी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, शायद मेरे पास डेटा होना चाहिए। ये यस, एम्प्लॉय रिटेंशन का ये डेटा है, हाउ टू रिटेन द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इसकी मैं ईएफए करना चाहता हूँ, वो रिलायबिलिटी एनालिसिस करना चाहता हूँ। तो एम्प्लॉय रिटेंशन का जो मेरा स्केल है, इसमें 21 आइटम्स हैं, 21 आइटम्स मैंने यहाँ पे ले लिए। और देखिए क्रॉनबर्ग अल्फा इज 0.52, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, व्हाट टू डू। कई केसेस में ऐसा हुआ है कि आपका डेटा गलत है, डेटा कलेक्ट किया, द सुपरवाइजर यूज टू फायर अपॉन द रिसर्च स्कॉलर, दोबारा डेटा लेके जाओ। मैं एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेना चाहता, उसने 2000 का डेटा कलेक्ट किया, मेरे पास आया कि सर डेटा का नेचर कुछ बिहेव नहीं कर रहा है, आप इसे देख लीजिए। मैं नहीं देख पाया, तो देन द टीचर रिमाइंडेड मी कि सर आप देख ले तो थोड़ा आसानी हो जाती, मुझे डेटा कलेक्ट करने के लिए इसे भेजना है। 2000 का डेटा आपके पास है, क्या आप चाहते हैं, डेटा के लिमिटेशन होते हैं। A sample size of 387 is sufficient for infinite population. ये तो मिसयूज है साहब, दिस इज नॉट फिजिबिलिटी। अब देखिए इसी रिलायबिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं विदाउट मैनिपुलेटिंग ऑफ द डेटा। यहाँ पे देखिए क्रॉनबर्ग अल्फा इफ आइटम डिलीटेड, आप इसे क्लिक करिए तो ये स्टैटिस्टिक टेबल आपके पास आती है। अगर इस आइटम को आप डिलीट करते हैं तो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट आपका ये हो जाएगा। जेएस का मतलब है जॉब सेटिस्फेक्शन, ओसी का मतलब ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ईपी का मतलब इन्वायरमेंटल परसेप्शन, और एसी का मतलब एटीट्यूड टुवर्ड्स कोवर्कर, और एसआई का मतलब स्टेइंग इंटेंशन। ये 5 फैक्टर्स बहुत डोमिनेंट हैं फॉर दिस टू डेवलप ए टेस्ट फॉर एम्प्लॉय रिटेंशन।
अब देखिए इस टेबल को मैं देखता आता हूं कि कोई ऐसा आइटम है जिसको मैं ड्रॉप करने के बाद कोई मेरा रिलायबिलिटी कोफिशिएंट में चेंज आए। तो देखिए आप ऐसे धीरे धीरे देखते आइए देखते आइए देखते आइए, लेकिन जब यहाँ पे पहुंचते हैं JS5 पे, अगर इस आइटम को आप रिमूव कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो आपकी ओवरऑल रिलायबिलिटी 0.86 हो जाएगी। इनिशियली क्या है 0.52, और सारे आइटम्स की भी रिलायबिलिटी 0.85 इन और अराउंड 885 होगी। अब देखिए यहां से JS5 को मैं हटा देता हूं, JS5 को मैंने हटाया, और इस टेबल को देखिए साहब, जस्ट लाइक द मैजिक ओवरऑल 0.86 होगी और सारे आइटम्स की आपकी रिलायबिलिटी। इस तरह से काम करने की जरूरत है सर। फैसल साहब शायद एक बात नहीं शेयर कर पाए फ्रेंड्स, पिछले 9 साल में आई डेवलप्ड, स्टैंडर्डाइज्ड एंड पब्लिश्ड 26 टेस्ट। वो शायद इसी वजह से कर पाया। मेरा प्रोफेसर के लिए जब सिलेक्शन कमेटी थी तो वन ऑफ द एक्सपर्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी आस्क्ड मी आफ्टर गोइंग थ्रू द CV, क्या डॉक्टर खान कैसे पॉसिबल हो सकता है। परहैप्स उस वक्त शायद 4 साल पहले मेरे 16 टेस्ट रहे होंगे। तो ही आस्क्ड मी हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि 35 साल में मैं एक नहीं डेवलप कर पाया और आपने 16 पिछले 6 साल में डेवलप कर दिए। तो आई रिएक्टेड, okay sir, you know I love to play with numbers, and when you torture the number they will confess. I have seen it number of times. तो DU के जो एक्सपर्ट थे वो हंसे, उन्होंने वाइस चांसलर साहब से कहा कि सर आई नो द कॉम्पिटेंसी ऑफ SM Khan when he was working with the Indian Railways. The Ministry of Railways used to appoint the expert advisory committee to audit their research. जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करते थे उनकी रिसर्च का हम ऑडिट करने जाते थे, तो वहां मैंने इनके काम को देखा है। सर इट इज ए पे बैक, मैं कुछ डिफरेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिंपली ए परसिस्टेंस बिहेवियर। वक्त के लिमिटेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट अगर आप देखें EFA का, अगर आप देखिए बस 2 मिनट के लिए डाइजेस्ट कर पाए तो EFA देखिए कितना खूबसूरत रिजल्ट आपको मिलेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। यहाँ पे JS5 को आपको निकालना होगा, हमने निकाल दिया। देखिए 5 फैक्टर्स इमर्ज हो गए, सारे अजम्पशंस यहाँ सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अब देखिए आप खुद देखिए AC1 फैक्टर, देखिए AC1, AC2, AC3, AC4 चारों आइटम्स जो एटीट्यूड टुवर्ड्स को वर्कर को मेजर कर रहे हैं वो एक फैक्टर में आ गए। स्टेइंग इंटेंशन देखिए SI1, SI2, SI3, SI4 एक साथ आ गए। यहां पर देखिए एनवायरमेंटल परसेप्शन चारों एक साथ आ गए, एटीट्यूड टुवर्ड्स कोवर्कर चारों एक साथ आ गए, जॉब सेटिस्फेक्शन चारों एक साथ आ गए। और ओवरऑल समरी देखें, देखिए 61.6% of the variance is explained by 5 factors into the employee retention. कलाम साहब ने जो कहा था ना कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हाउ टू रिटेन द एम्प्लॉय, हम नहीं परवाह करते हैं अपने एम्प्लॉयज की। ओके सर, तो मैंने जेमोवी के बारे में बात की, फ्रीली अवेलेबल, आप डाउनलोड करिए और बहुत आसान है सर। आई एम सेल्फ प्रोपेल्ड, जरूरत नहीं है किसी वर्कशॉप में बैठने की, किसी के पास जाने की। आप एक छोटा सा वीडियो 5 मिनट का देखिए, गूगल में सर्च करिए जेमोवी फॉर बिगनर्स, 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो देखिए, यू विल बी द मास्टर ऑफ दिस डोमेन। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्टीज हम बात कर चुके हैं साहब, और क्योंकि भाषणी के बारे में थोड़ा वक्त नहीं है, आप इस पे काम करिएगा, बहुत ही खूबसूरत स्लाइड है। और मैनेजमेंट स्टाइल, इथिकल कंसिडरेशंस, ये सारी PPT में शेयर करूंगा। मेथोडोलॉजी के बारे में भी देखिए मैंने आपको माइंड मैप दिखाया कि हाउ टू सिलेक्ट द सैंपल, स्टैटिस्टिकली सैंपल को सिलेक्ट करिए, सैंपल साइज कितना सफिशिएंट होना चाहिए स्टैटिस्टिकली वो आपको सिलेक्ट करके देगा। डेटा एनालिसिस मैंने आपसे डिस्कस की, रिलायबिलिटी मैंने आपसे डिस्कस की, वैलिडिटी भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली।
एंड सर्वे मंकी, बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशन है टू क्रिएट द सर्वे क्वेश्चनर्स। मैं सब खत्म कर लूंगा अपनी बात को, प्लीज स्टे बैक विद मी। सर्वे मंकी एआई एप्लीकेशन है, गूगल के साथ मुझे चलना है। देखिए तैयार है सब, क्रिएट सर्वे। अब देखिए स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, कॉपी एन एग्जिस्टिंग सर्वे और बिल्ड विद एआई। मैं एआई के थ्रू बनाना चाहता हूं। फाइन, इंसर्ट। अब यहां पे यू नीड टू वर्क ऑन क्रिएट ए सर्वे। फाइन, बिल्ड विद एआई। यहाँ पे प्रॉम्प्ट आपको पेस्ट करना है, प्रॉम्प्ट में लाता हूँ। देखिए सर, शायद मेरे पास होना चाहिए। आई विश टू, देखिए ये है, create 10 questions to study emotion regulation of single women measured on a 5-point scale and also add 3 negatively scored items। मैंने कॉपी किया और सर्वे मंकी में मैं आ जाता हूं सब, और पेस्ट किया और देखिए एंटर कर दिया। राइटिंग सर्वे क्वेश्चंस, अनएथिकल नहीं है साहब। मैंने तो नंबर ऑफ टाइम्स देखा है। आप एक क्वेश्चन बना लीजिए और प्लेगरिज्म चेक करा लीजिए, इट विल बी लेस देन 2% और 3%। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ ऑफन डू यू फील इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस? हाउ वेल डू यू मैनेज योर इमोशंस इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन? हाउ ऑफन डू यू फील ओवरवेल्म्ड बाय योर इमोशंस? 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसमें नेगेटिवली स्कोर्ड भी हैं। कंटिन्यू कर दीजिए आप। देखिए ये मेरा क्वेश्चन बन गया। बहुत सारी थीम ऐड कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। हर आइटम को देखिए, यहाँ पे ब्यूटी इसकी ये देखिए, मैंने इस आइटम को क्लिक किया, आप इसको एडिट कर सकते हैं, ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं, लॉजिकली बना सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। पेज टाइटल क्या होगा, लोगो क्या होगा, आपका पर्सनलाइज क्वेश्चनर बन जाएगा। प्रीव्यू देखिए, इस तरह से आपका सर्वे क्वेश्चनर होगा। देखिए देखिए इमोशन, ये आपका सर्वे बन गया। नेक्स्ट कर दीजिए। अब देखिए आप कहाँ भेजना चाह रहे हैं, कोलैबोरेटर्स, आप कौन कौन सेंड सर्वे योर वे। आप देखिए किसको भेजना चाह रहे हैं, टारगेट योर आइडियल, आप शेयर करिए। और योर डेटा कलेक्शन, ऐड कोलैबोरेटर्स, देखिए सर्वे एडिटर्स वगैरह वगैरह, किसको डेटा जाना है। बस आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं इस अपने क्वेश्चनर को। यू कैन सबमिट विद द योर टॉप मोस्ट बॉस के, सर मैंने ये बनाया है, कैन यू गो थ्रू इट। सारी चीजें अवेलेबल है। फाइन, जरूरत है साहब कि हमें टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने की और वर्क करने की। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपसे शेयर किया। एक एप्लीकेशन मैंने शेयर की थी गैंट चार्ट वाली, और एक्सेल में भी ये एप्लीकेशन अवेलेबल है कि देखिए डिफरेंट एक्टिविटीज किस डेट को शुरू हुई, कब खत्म होगी, कितने डेज, और दिस रेक्टेंगल विल बी चेंज ऑटोमेटिकली। ये बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन और मेरे दिमाग में है, इससे पहले मैं जाऊं। नॉर्मली ये होता है कि साहब हम अपने स्कॉलर को और पढ़ने के लिए देते हैं रिसर्च आर्टिकल कि इसमें पढ़िए। तो चैट डॉक करके देखिए एक एप्लीकेशन है, चैट डॉक एआई एप्लीकेशन। फाइन सर, मैं देखिए इसे इसे करता हूँ। देखिए चैट डॉक के साथ देखिए आप, इसकी ब्यूटी देखिए आप।
मैं आर्टिकल को पढ़ना चाहता हूँ। नॉर्मली आर्टिकल में पढ़ने की क्या चीजें होती हैं, उसकी मेथोडोलॉजी, ये उसके फाइंडिंग्स के बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चंस। यहाँ पे आप उस फाइल को ड्रॉप कर दीजिए या अपलोड कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फाइल आप जहाँ जा रहे हैं वहां पे ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे लेट मी गो बैक टू द स्क्रीन, चैट doc. आई विल कंक्लूड इट विद इन 5 मिनट्स। तो मैंने जो आपसे बात की थी कि देखिए ये रिसर्च आर्टिकल है जिसको मैं पढ़ना चाहता हूँ एआई की मदद से। ये जो मैंने आर्टिकल आपके सामने रखा था, अब देखिए इसको मुझे पढ़ना है, और पढ़ने के लिए देखिए मैं आपके सामने जो बातें शेयर करना चाहता हूँ। टाइप योर क्वेश्चन। अब देखिए मेन फाइंडिंग्स, मुझे बताइए भाई इस आर्टिकल की क्या फाइंडिंग्स हैं। मैंने एंटर किया और यहाँ पे देखिए इस रिसर्च आर्टिकल की फाइंडिंग्स आ गई। हमें यही तो पढ़ना होता है सब। रिसर्च डिजाइन क्या इस्तेमाल हुई है इस आर्टिकल में, मुझे बताइए। रिसर्च डिजाइन आ गई सर। सैंपल डिस्क्रिप्शन क्या था, एंटर करिए। सैंपल को डिस्क्राइब कर दिया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स सब 10 मिनट में पढ़कर स्कॉलर आपको जो चाहे सवालों का जवाब दे देगा। देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इम्प्लीकेशंस, जो हम रिसर्च गैप की बात कर रहे हैं, या सजेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च, इसमें क्या दे रहा है ऑथर, सजेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च। मैंने एंटर किया और देखिए सब इस तरह से रिसर्च करने की जरूरत है। और देखिए सजेशन, अब यहाँ से मैं गैप पकड़ लूंगा और उस पर फर्दर अपना रिसर्च टाइटल बनाऊंगा और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा दूंगा। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। डॉक्टर रजी साहब का वार्निंग मैसेज आ रहा है और वक्त की लिमिटेशन है, जिससे कि वी कैन इनवाइट द क्वेश्चंस एज वेल। बस 2 मिनट में लेट मी फिनिश इट। टाइमलाइन मैंने आपसे बात कर ली और ये पीपीटी मजहर साहब आपसे शेयर कर लेंगे। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए अपने स्कॉलर्स को हम बताएं कि कहाँ पे स्टोरेज है हमारी रिसर्च का। thousands of documents are there, they can help them to come out of the wonderful research problem. The last slide जो मैंने आपसे शेयर किया था, you can have the screenshot how to create the mind map. ये ऐसी नॉलेज है कि साहब इससे शायद इसके थ्रू मैं आपके दिल में और ज्यादा जगह बना पाऊंगा कि इसके थ्रू पढ़ना, अपने मेमोराइज करना। देखिए बहुत आसान है, जब विजुअली चीजें दिखाई देती हैं, क्रिएटिव फॉर्म में दिखाई देती हैं, तो लेसन या टॉपिक बहुत अच्छा डाइजेस्ट होता है। इन प्लेस ऑफ रीडिंग एंड मेमोराइजिंग द पैराग्राफ्स बहुत मुश्किल होता है। तो ये लास्ट स्लाइड मैंने इसलिए रखी थी कि शायद मैं लास्ट तक आपको रोक पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वंडरफुल participants. Let me close the stop the class. Thank you so much for being wonderful. Sir, आप हैं फैसल sir? Yes, I am here. I'm listening to you. Thank you so much for staying back, sir. Now it's your time, sir. Yes, it is up to the audience now. We were around 70 participants were there. Please, all the participants are free to raise questions. Yes, sir. Please. Related to the topic. Thanks. अगर बात नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा शायद मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरा। प्लीज बात करें। Assalamu alaikum, sir. जी sir. Islam sir. So it's really excellent, but I'm very sorry because we were having very less time.
to understand these AI supported softwares. राजीव साहब सुनिए, एक मिनट, आपके डायरेक्टर साहब बैठे हैं, अब सिफारिश करिए हमें वहां बुला लें। सर मैंने लिखा भी है, I was really interested. जो AI सॉफ्टवेयर टूल्स हैं सर, particularly for the professors, associate professors and assistant professors in our country, particularly in central universities. सर ये जो टूल्स हैं, थोड़े से मेरे डाउट्स भी हैं, मैं एक एक टूल को समझना चाहता था, एंड आई वाज वर्किंग ऑन इट। जैसे आपने डू वी हैव एनी टूल सर फॉर राइटिंग रेफरेंसेस इन APA स्टाइल? हाँ बिल्कुल है, जो जोरेटो जो है ना वो ऑटोमेटिकली, देखिए इट विल आस्क यू, मैं एक स्लाइड और दिखाता हूँ आपको, प्लीज अलाउ मी। यस सर। एक स्लाइड और दिखाता हूँ, मेरे पास बहुत ऐसा कंपाइलेशन है। देखिए मैं इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा, और APA स्टाइल, जिस स्टाइल में चाहे, n नंबर ऑफ स्टाइल्स आर देयर, कि आपको किस, देखिए ये एप्लीकेशन आया, आई एम श्योर दिस इज विजिबल। यहाँ पे देखिए कि मैंने एप्स को किया है और उसकी यूटिलिटी यहाँ पे मैंने साइड में लिखी है, और मैं रेफरेंसिंग वाला आपको दिखाऊं। देखिए कंसेंसस AI जो एप्लीकेशन है, एविडेंस बेस्ड आंसर, आप सवाल पूछिए वो सपोर्टिंग लिटरेचर और रिसर्च को भी कोट करेगा कि फलां रिसर्चर ने ऐसा काम किया था। और रेफरेंसेस के लिए लेट मी थिंक फॉर इट, मैंने किया है उसको, मुझे नाम अभी दिमाग से निकल रहा है मेरा, मैंने किया है उसको, साहब थोड़ा वक्त का तकाजा है। कोई नहीं सर, आई विल कम बैक टू यू सर, जस्ट फिनिश इट। और देखिए जब रिसर्च रैबिट में कर रहा था तो वहां पे ऑप्शन आता है कि किस फॉर्मेट में आपको रेफरेंसेस को लेना है, और इवन कि मैंने अगर पहली स्लाइड में आपके सामने वो रखूं तो मैंने उसमें भी रखा है, ये वाली स्लाइड शायद इसमें है, ये वाला माई बिब एक एप्लीकेशन है जिसमें, और रिसर्च रैबिट दोनों में है कि आपको किस फॉर्मेट में अपना रेफरेंसेस को भेजना है। राइट सर? ठीक है सर, मेरा दूसरा सवाल का जवाब तो मिल गया सर, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फाइंड आउट द रिसर्च गैप बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एनी रिसर्च। सो वो आपका लास्ट वाला दे दिया था आपने सर। जी। सर एक को क्वेश्चन है, यानी आई एम सॉरी सर, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि जब हम सर ये जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं AI सॉफ्टवेयर्स, और जब हम पेपर्स भेजते हैं तो वहां पे ये बोलता है कि AI असिस्टेड प्लेगरिज्म है, हाँ, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हाउ टू ओवरकम दिस सिचुएशन सर? ये वाला सीन आया है, देखिए एट द ऑनसेट, एक्चुअली यहाँ पे अगर प्रॉम्प्ट में आप एक राइडर लगाएं, जैसे प्रॉम्प्ट लिखिए डॉट नो प्लेस होल्डर, डॉट लगाइए, यूज योर ओन नॉलेज। ये आप देखिएगा जब ये राइडर लगाएंगे तो ट्रस्ट मी वो कैप्चर नहीं करेगा, और जब कैप्चर करेगा तो उसमें थोड़ा सा टचअप की जरूरत है। देखिए जब भी AI का या किसी भी एप्लीकेशन का थोड़े से तो लिमिटेशन है, और रजी साहब मैं करेक्शन करता हूं अपनी बात में कि ये लिमिटेशन वहां पर है कि वी आर यूजिंग फ्री एप्लीकेशन। क्या आप पेड एप्लीकेशन के थ्रू आपने किया? पेड में नहीं है सर, पेड में तो ये है, आप देखिए साहब कुछ तो देना पड़ेगा। वो इसीलिए तो अपनी दुकान चला रहे हैं कि आप खरीदें उनसे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और लेकिन साहब एक रिसर्च आर्टिकल के लिए या एक बहुत सीरियस एक्टिविटी के लिए 1 महीने के 1000 रुपए ज्यादा नहीं होते हैं। हाँ सर, नो डाउट नो डाउट, ये तो है सर। जी सर जितने भी सॉफ्टवेयर्स बताए हैं आपने, इस पे वाकई इन्हें अगर 1-2 घंटे मिले तब जाकर के ये चीजें क्लियर हो पाएंगी, अदरवाइज 3.5 से 5 में तो नामुमकिन है। लेकिन मैं तो टीचर से बात कर रहा था, आप बहुत स्मार्ट हैं माशाल्लाह, इसीलिए रफ्तार मेरी तेज थी। सर 1.5 घंटे में आपने तो सिर्फ हमको, यू क्रिएटेड समथिंग इन अस टू नो दीज थिंग्स। रजी साहब सुनिए,
आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्लीज अलाउ अदर्स। ऐसा ना हो कि हमारे आपकी बात ही होके रह जाए। I'll come back to you, sir. I'll come back. प्लीज वेलकम ऑल द टाइम, प्लीज अदर टीचर्स इफ एनी। हालांकि रजी साहब ने बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन को एड्रेस किया, लेकिन वी कैन मेक ए डिफरेंस। Zakaria is sitting. जकरिया साहब बताइए सर। Excuse me, sir. I have one more question. Can we use the AI tools for paper review? पेपर रिव्यू करने के लिए, हाँ मैंने दिखाया था आपको कि उस आर्टिकल को आप चैट डॉक के थ्रू ओपन करिए और यू आस्क द क्वेश्चन। उससे पूछिए कि कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें यूज किए गए हैं और कहाँ से मटेरियल इसमें कैप्चर किया गया है। आपको मिल जाएगा रिजल्ट, मैंने किया है। तो इसकी वजह से हम पेपर के रिव्यू कर सकते हैं। पेपर जकरिया साहब यू आर नॉट ऑडिबल, थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कर रहा है शायद। फैसल साहब, एम आई राइट सर? Yes. Zakaria sir, your voice is not clear. हाँ सर। Either you stop your vehicle and park and then speak. It seems that you are on the vehicle. ओके, यस सर, बस ये क्वेश्चन था कि एआई टूल का यूज कर सकते हैं पेपर रिव्यू के लिए। मैंने बोला है ना सब, आर्टिकल रिव्यू करने के लिए यू कैन यूज इट, चैट डॉक। ओके सर, ओके, थैंक यू। और बोलिए सर। Anyone else? यूसुफ साहब, मुजफ्फर यूसुफ साहब प्लीज। सर Jijo and Muzaffar, they have raised their hands. Please raise your questions. फ्रेंड्स, वी बिलोंग्स टू द सेम फ्रेटर्निटी, हम लोग टीचर हैं। कभी भी जरूरत पड़े फैसल साहब के थ्रू भी, और मेरा कांटेक्ट नंबर देखिए मैंने चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है, और डिपार्टमेंटल वेब पेज पे दिस इज एसएम खान, आप कभी भी अप्रोच करिए, आई विल बी एट योर एक्सपेक्टेशंस। बताएं सर। यूसुफ साहब। सर, जेमूवी यूज करने के लिए एसपीएसएस का जानना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ओके सर। एकदम इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है, लेकिन बेटर देन इन सम ऑफ द एप्लीकेशन कंपेयरिंग टू द एसपीएसएस। ओके सर। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, देखिए सब 1986 से मैंने एसपीएसएस को यूज करना शुरू किया है। 86 जब पीसी कहाँ हुआ करते थे, एनआईसी दिल्ली में हमें एक महीने में आधा घंटे का रोस्टर मिलता था। आई वॉज वर्किंग इन आईसीएमआर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो मैं वहां से कन्विंस्ड हूं। बिल्कुल जानना जरूरी नहीं, आपने देखा इट इज एज गुड एज एसपीएसएस, सारे फंक्शंस वही हैं। यस सर, यस। बोले सर। Sir, hello sir. जी सर, जी सर, जी Sir, बोलिए सर। I have a question. Is there any AI tool that can automatically fetch data from dimension like or web science like databases, particularly from dimension databases, in Excel format or any kind of an analyze that can analyze through some graphs or charts? Is there any AI tool? Yes, there are absolutely AI tools, but I have not explored. I'm sorry in this point. Actually, for all now see, देखिए सर, सामंता साहब, हम लोग एकेडमिशियंस हैं, हम लोग टीचर्स हैं। इन रिसर्च और रिसर्च आर्टिकल द चार्ट्स और ग्राफ्स ओनली 2 डायमेंशनल्स आर एक्सेप्टेड, 2 डायमेंशनल्स। एआई टूल्स में या एक्सेल में ज्यादातर में मैंने देखा है कि वहां पर 3 डायमेंशनल बहुत अच्छे अच्छे चार्ट्स और ग्राफ्स मिल जाते हैं। हम उनके चक्कर में शायद भूल जाते हैं कि इथिकली ये चीज अलाउड नहीं है। तो आई हैव नॉट वर्क ऑन दिस डोमेन, क्योंकि वो मुझे लगा कि वो हमारे लिए नहीं है। इट मे बी फॉर अदर्स डोमेन जो डेटा साइंस में काम करते हैं, उनके लिए हो सकता है। Actually, sir, I have asked because I am working on altmetrics data, sir, scientometrics research. That's why I asked you. Actually, I have to fetch. Psychometric,
आप बात करिए सर, साइकोमेट्रिक में तो मोर देन 3 डिकेड्स में काम कर रहा हूँ सर, IIT पे भी मैं काम कर रहा हूँ। Actually, that's why I have to fetch lots of data from Dimension database, and if I found some AI tool that can very much helpful to me actually, sir. वी कैन वर्क ऑल टुगेदर सर, आप बात करिए मुझसे, हम लोग दोनों मिलके एक अच्छा। Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. वेलकम सर। और बताएं सर। सर वन मोर क्वेश्चन। हाँ सर, जकरिया सर। किसी ग्राफ को ऐसे कोई एआई टूल है जिसे किसी ग्राफ को अपलोड करके उसकी एनालिसिस बता दे कि ये इस ग्राफ में मैंने नहीं किया है, कर सकते हैं। कर सकते हैं इसी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इमेज के बारे में भी बहुत सारी चीजें आप जान सकते हैं, इसी तरह से ग्राफ के बारे में भी जान सकते हैं। इवन कि आप जियो टैग करके आप जीपीएस के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन आपने कैप्चर की, उसके बारे में पूरा आप इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। एआई अनलिमिटेड यूजेस हैं इसका, आपको यूज करना पड़ेगा। देखिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बन चुका है, और आप सर मैं एक अचीवमेंट के लिए केरला को खासतौर से मुबारकबाद देना चाहूंगा सर। The school, one of the school in Kerala has AI teacher now. आपने सुनी ये खबर सर? फैसल सर, जकरिया साहब। Some hospital also AI nurse is there. नहीं, AI teacher also sir, in AI हाँ। teacher also। देखिए बात वही आ रही है कि साहब टेक्नोलॉजी को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, else we are going to be replaced by these methods। जैसे कोविड में आपने देखा कि हम ऑनलाइन क्लास नहीं, बहुत सारे हमारे टीचर्स पढ़ा पा रहे थे, 40% we are supposed to deliver online classes, online courses। डिजिटल यूनिवर्सिटी बन गई, अब तो सारी चीजें बहुत डिफरेंट जा रही हैं, राइट सर? बताइए सर, कुछ और बताएं सर, और क्या मैं वाकई आपके एक्सपेक्टेशंस पे सर? फैसल सर आपकी फीडबैक का इंतजार। बिल्कुल। So all are excited and they are actually eagerly waiting for more, but we are bound by the time. We are already 5:05. More than 1 hour. We don't know actually how the time passed this much fast. So it was so interesting. That's why we could not even notice the time actually already over. So, sir, last word, sir. हाँ सर। सर ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर कर दीजिए आज ही। Yes sir, I have also this kind of request to you, sir. Please share your PowerPoint presentation to us. 100% सर, you will get it। रजीद साहब, ये जिम्मेदारी अभी तक मजहर जो HRDC से वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको भेजता हूँ अभी 5 मिनट के अंदर। आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। सर बताइए सर, आपके वर्ड्स मुझे नहीं मिले अभी। फैसल साहब। Okay, yes, then let me put it formally. Now we are moving towards the end. Conclusion 5-6 हो गया, अभी तो इंशाल्लाह 5:30 पे दूसरा सेशन भी है। So on behalf of the organizing committee and all participants, I would like to express our sincere gratitude and thanks to Professor Isam Khan sir for delivering such a thought-provoking and insightful session, very useful session on research project management with a special focus on the integration of AI tools in the research. Your expertise, drawn from decades of academic and research experience, was clearly evident in your presentation. And not flattering. So we able, since you have provided us with a comprehensive understanding of the complexities of the research management, and more importantly, how emerging technology, particularly AI, can revolutionize the way we handle data, analyze data, what is even review the literature. We can also even set the questionnaire, set the objectives, and also set the what is a research project for the funding agencies, etc., and draw meaningful conclusions in our research. The practical applications and strategies you shared today are bound to have a lasting impact on the participants here and our approach towards research. Your ability to bridge the gap between the traditional research methodology and modern AI-driven technology was truly commendable. And I'm sure it has inspired many of us to explore new ways to enhance our own research project
I think I was listening to Razi. He was also so moved by your presentations. Professor Khan, you are deeply, we deeply appreciate the time and effort you have taken to share your vast knowledge with us. Your dedication to advancing research and education is truly admirable, and we are fortunate to have benefited from your insight today. Once again, thank you so much for your valuable contribution to this session, and thank you all for participating and also interacting with this our great resource person today. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So inshallah, we'll join again 5:30. This will be the last session, and there will be a concluding session by 7 p.m. So, sir, I can leave the class, sir. We all are leaving now. We'll be joining again 5:30, and there is a tea Thank you, party sir. outside. You can. Thank you, sir. Thank you so much, sir. My gratitude, sir. Okay, Thank you. thank you.